Problem set 3. Okay. So in the last class, I have discussed problem set 3.3, first problem, है ना? I think. So I left is an exercise. So you have tried all the problems. That is simple problem which I already discussed. वही वो या I need to do? Yes sir, वो तो linear combination. Yes, exactly. Yes sir. तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. So let us take. चलो. Okay. So let us take next problem of this set. Problem set 3.3. Problem number 3. Third problem is there. It is basically a result, an important result. If S is a non-empty, if S is a non-empty subset of a vector space V, prove that. So we have two parts here. First part is a span of S is equal to S if and only if S is a subspace of V. Okay, देखिए how beautiful result is. Span S is equal to S if and only if S is a subspace of V. कुछ obvious सा लग रहा है ये बात? क्यों भाई? बताइए. अगर S आपका सब स्पेस है, then span S is nothing but the S set itself. Okay? स्पैन एस तो हमेशा सब स्पेस होता ही है जी. फिर अगर उसमें एस भी अगर सब स्पेस हो जाए तो वो मतलब इक्वल ही होगा. इक्वल हो जाएंगे ना. S अगर सबसेट है तो you know span S is not need not be S क्योंकि span S is always an infinite set. तो infinite set जाहिर है S के इक्वल जब ही हो सकता है when S is itself a subspace. Is it clear? Yes. Second important result, span S of span S is how much? A inverse of inverse is how much? सर वो तो फिर ए ही हो जाएगा. स्पैन में भी ये बात ट्रू होगी. कोई इनफाइनाइट सेट अगर है तो क्या वो S के बराबर हो सकता है फिर फाइनाइट हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? नो सर सर. अगर वेक्टर स्पेस है तो सर वो तो इनफाइनाइट ही रहेगा. समुद्र के अंदर एक समुद्र और डाल दो तो क्या रहेगा? वो समुद्र ही रहेगा. हाँ रहे. क्यों भाई? तो इसमें वो वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा कि ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ए या ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स. नॉर्मली माइंड में ये रिजल्ट रहता है ना. इट इज ट्रू बट स्पैनिंग के लिए इट्स नॉट ट्रू बिकॉज स्पैन मीन्स इट इज गिविंग यू समथिंग डिफरेंट थिंग. तो स्पैन ऑफ स्पैन एज इज हाउ मच? हाउ मच? स्पैन एस. दो ही पार्ट है. एक पार्ट मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ आपके लिए. अगर मैं कह दूं अब नाउ व्हाट? span of span S is how much? सर ये भी वही हो जाएगा सर, स्पैन एस के ही बराबर हो जाएगा. यस है ना. तो अंडरस्टूड है. कितने बार भी ले लीजिए आप, स्पैन ऐसी रहेगा ना. ये पार्ट आपका इसमें नहीं है लेकिन एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर एग्जामिनेशन में तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि स्पैन ऑफ स्पैन ऑफ स्पैन ऑफ स्पैन n times or infinite times it will always an span set because span S is already infinite set. Keep in mind. So these two results are there which we will prove here. So let us take. The first thing is what? Okay, this is your if and only if condition. Right? This is a characterization theorem. It is called characterization theorem. Means both the side you have to prove it. First thing I am assuming, suppose one side. Let us suppose I am assuming let S be a subspace of some given vector space V. किसी वेक्टर स्पेस V का S subspace है suppose. है ना? तो what I will show?
span S is equal to S. And as I told you, if you remember, if you want to show two sets are equal, how to show it? If you want to show A is equal to B, Yes, वही x belong to A implies means वाला you जो have to था show A is a subset of B, B is a subset of A. तो इसके Subset लिए of आप शो A. करेंगे कि x belongs to A implies x belongs to B, x belongs to ये हमेशा ध्यान रखना आपको, because this thing I will be using so many times in this paper. So here S be a subspace of V. So my claim is, we claim that span S is equal to S. So I will show S is a subset of span S and span S is a subset of S. So you know already, I have already discussed this thing by theorem 3.3.5. I already shown this thing that S is always contained in where? करा था span मैंने? S Span S. ये तो हमेशा होता ही है, सबसेट होगा उसका हमेशा Yes. सबसेट होगा, आपको पता ही है कि अगर u belongs to S है तो वन डॉट u also belongs to S, ये थ्योरम हमने करा है ना, तो दिस implies that what u belongs to span S. इस तरीके से आप ये दो लाइन में लिख के दिखा सकते हो, ये हमें ऑलरेडी पता है ना, और कन्वर्स जो है वो भी हमें पता है ऑल्सो, वो भी हम प्रूव कर चुके हैं. वी नो डैट स्पैन एस इज द, क्या स्टेटमेंट था थ्योरम का? स्मॉलेस्ट सब स्पेस Subspace of V पूरी बात बताइए. containing S. यस, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, containing S. Okay, we know that span S is the smallest subspace of V containing S, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्पैन S जो है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, और हमारे पास क्या एज्यूम करा हुआ था कि S आपका क्या है? S सब स्पेस है ना. देखिए ये अजम्पशन था नहीं था, तो S के अंदर S तो होता ही है हमेशा, S ऑलरेडी है ना. ये बताइए S ऑलवेज कंटेन, ये मैं लिख सकता हूं? Yes sir. है ना. और यस S आप सर ये तो हो जाएगा और S आपका सब स्पेस है जो S को कंटेन कर रहा है. हमने प्रूव करा हुआ है कि स्पैन S जो है वो स्मॉलेस्ट होगा, तो स्मॉलेस्ट के लिए आपने क्या प्रूव किया था कि इफ कोई भी आपका S कंटेन कर रहा होगा स्पैन S में, वो हमेशा कहाँ होगा? किसके अंदर चला जाएगा? वो S में जाएगा, नहीं जाएगा? ये तो प्रूफ किया था हमने, वो जो आपको कहानी सुनाई थी मैंने, बीरबल वाली, छोटी लाइन बड़ी लाइन. तो स्पैन, क्योंकि S आपका सब स्पेस है, बिकॉज S इज अ सब स्पेस, स्पैन S इज ऑलवेज कंटेन्ड इन S, है ना. बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं? बिलाल जफर के समझ में नहीं लग रहा है. सर आ गई सर, लिख रहे हैं सर. अच्छा, अरे लिखने की जरूरत क्या है यार, मैं वीडियो शेयर करते देता हूँ आपको पूरा. ये इसका स्नैपशॉट ले लिया करो, सर जब ये स्लाइड खत्म हो तो स्नैपशॉट ले लेना इसका मोबाइल में अपने पास, और फिर लिखते रहना सर बैठ वो के आराम से. चलो साथ ही साथ लिखा जाता है तो आसान रहता है. चलो फिर ठीक है. वानी, वानी कहाँ है? sir. MS वानी कहाँ गए आज? यस सर. हाँ, समझ में आई बात भाई वानी? यस सर. यस सर. ये वाला स्टेप है ना. सो फ्रॉम 1 Yes, and sir. 2, यस, तो 1 and 2 implies that S span S is equal to S, है ना. तो ये रिजल्ट याद रखना है कि इफ S is a subspace of V, span S is equal to S. ठीक है, ये सारे रिजल्ट आपको ज़बान नहीं याद होने चाहिए. जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोलते हो, ऐसे ये सब बोलने रिजल्ट आपको. चलो बताइए कुछ डाउट हो तो. बी पार्ट करते हैं, चलिए फिर. लेट अस टेक बी पार्ट. बी में हमें प्रूफ करना है स्पैन S इज इक्वल टू S, तो वही सेम अप्रोच लेंगे. तो बी के लिए भी, क्योंकि आपको फिर बी में क्या शो करना है, नहीं अभी हमने शो, अच्छा अभी बी पार्ट नहीं है, एक मिनट,
अभी तो ए पार्ट रह गया है, क्यों? सर इसमें दूसरी साइड वाला नहीं किया है हाँ अभी। हाँ वो करते हैं, चलो अभी बी पार्ट नहीं आएगा। चलो conversely let span s is equal to s. So what is our claim? Now we are claiming s is a सब स्पेस सब है स्पेस ना, ये प्रूफ of करेंगे s आपका सब स्पेस है v का। आपको पता है कि किसी सेट को सब स्पेस शो करना है तो यू हैव ऑलरेडी अ थ्योरम। क्या थ्योरम थी? इफ uv बिलोंग्स टू s देन तो वो सब स्पेस प्रूव करना है, अल्फा यू प्लस बीटा वी वाला जो था यस कंडीशन एग्जैक्टली बिलोंग टू। यस। तो मुझे s सब स्पेस शो करना है, तो आई विल अज्यूम लेट u कॉमा v बिलोंग्स टू s। ओके, हम क्या शो करेंगे? अल्फा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू s। तो अगर u v बिलोंग्स टू s है तो क्या बताओ? कैन आई राइट दिस इंप्लाइज दैट u v बिलोंग्स टू स्पैन s? सर उसका जो लीनियर Yes, कॉम्बिनेशन sir. होगा वो तो लाई करेगा ही ना। क्यों करेगा लाई? s आपका सब स्पेस कोई है, इस यही तो शो करना सर है। एस जो है सब अभी आपका s सिर्फ सब सेट है, सब स्पेस नहीं है। ओके, ये तो क्लेम है हमारा, इट इज आवर क्लेम, मींस वी हैव टू सर प्रूव। सब सेट है तो इसलिए सर लाई करेगा ना। सब सेट में लीनियर कॉम्बिनेशन लाई करता है तो हर सब सेट सब स्पेस हो जाएगा फिर तो। नहीं सर, ये यू और वी है तो ये यू और वी तो लाई करेंगे ना, क्योंकि सर ये सबसेट है स्पेन एस हाँ का। हाँ हाँ, नहीं सबसेट नहीं है ये, हम अब अज्यूम करके चले कि स्पैन एस इज इक्वल टू एस। तो अब जो एस है वही स्पैन, अच्छा ये अज्यूम करा ना आपने। अब ठीक है सर, तो ठीक जो है ठीक एस है है वही सर। स्पैन एस, इट इज योर अजम्पशन। सो इफ यूवी बिलोंग्स टू एस इट मींस यूवी बिलोंग्स टू स्पैन एस बिकॉज आवर अजम्पशन। समझ में आई बात? नहीं, दिस इज आवर अजम्पशन। भैया आप कन्वर्ट शो कर रहा हो तो वन साइड में ट्रू मानिए एज आवर अजम्पशन। बताइए आगे बढ़े बढ़े। यस सर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर uv बिलोंग्स टू s है देन अल्फा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू स्पैन s? कैन आई राइट इट? यस सर, लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ, क्योंकि यस सर। बिकॉज यू नो स्पैन s कंटेन्स, सिंस स्पैन s कंटेन्स all the linear combinations of u and v, है ना इस केस में। तो अंडरस्टूड है। अब स्पैन s किसके इक्वल है? लेकिन s के, आई कैन से अल्फा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू s सिंस स्पैन s इज नथिंग बट s। इसका मतलब क्या हुआ? uv बिलोंग्स टू s implies this implies that s is a subspace of v। कैसी लगी थ्योरम बताइए? क्यों भाई जयदीप? अच्छी थी सर। हाँ ठीक है। पीयूष शर्मा यस सर। समझ में नहीं आई? नहीं सर आ गई। सर इसमें हमने एस को बाद में सब स्पेस प्रूफ किया ना, और हाँ उसमें पहले वाले में एस को पहले ही सबसे सब स्पेस माना। वही तो मैं बता रहा हूँ। इफ एंड ओनली जो होता है इसका मतलब होता है बोथ साइडेड ट्रू। तो whenever you want to show something both sided you have to assume suppose first thing is true this implies second, है ना। फिर मांगेंगे कि सपोज राइट इज ट्रू देन दिस इंप्लाइज फर्स्ट। अब उसमें आप पहले किसी को भी मान सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पहले मैंने ये बात ट्रू मान ली कि लेट एज इज सब स्पेस, और मैंने प्रूफ कर दिया स्पैन एस इज इक्वल टू एस। ठीक है। कन्वर्सली में मैंने पहले ये एज्यूम कर लिया लेट एस सपोज दिस ट्रू, हमने प्रूफ कर दिया एज इज सब स्पेस। किसी को भी आप पहले कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ इशू, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक। यस सर। बी पार्ट की बात करते हैं। तो नाउ बी पार्ट इज स्पैन ऑफ स्पैन एस इज इक्वल टू स्पैन एस। ये आपको प्रूव करना है, डबल स्पैन से। तो इसमें क्या करें बताओ जरा, थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस
लेट अस सपोज स्पैन एस को मैं थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूँ, ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। हमने इसे टी मान लिया, होगा तो कोई सेट ही है, कर सकते हैं। यस सर। लेट अस Yes, सपोज sir. स्पैन एस इज टी, तो अगर स्पैन एस ऑफ टी है तो इसका मतलब हमारे पास क्या प्रूफ करना हुआ कि स्पैन ऑफ स्पैन एस इज इक्वल टू स्पैन, इसे मैं ये लिख सकता हूँ, अगर स्पैन एस टी है तो अगर मैं इसको डबल स्पैन करूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि टी को एक बार स्पैन कर रहे हैं। एक ही बात तो है, ये देखो, है ना, नोटेशन दे दी बस हमने Yes, sir. कि डबल स्पैनिंग का मतलब सिंगल स्पैन ऑफ टी, क्योंकि हम सिंगल स्पैन टी से ज्यादा फैमिलियर है इसलिए मैंने ऐसा करा है, समझ गए बस। चलो, तो यहाँ पर आपको फिर वही शो करना है कि दीज टू आर इक्वल, आपको क्या शो करना है, दीज टू आर इक्वल। तो हमें ये बात तो पता ही है हमेशा, वी नो दैट कि हमेशा कोई भी सेट जो है वो उसके स्पैन सेट में तो रहेगा ही रहेगा, इट इज ऑलवेज ट्रू, वी हैव ऑलरेडी प्रूव इट, अभी प्रूव किया पीछे भी, टी ऑलवेज कंटेन्ड इन स्पैन ऑफ टी, है ना, दैट मीन्स टी इज व्हाट, स्पैन एस, स्पैन एस इज कंटेन्ड इन, और स्पैन टी का मतलब क्या है, डबल स्पैन। तो ये हमने एक साइड तो प्रूव कर दी, समझ में आई बात नहीं, एवरी सेट इज ऑलवेज कंटेन्ड इट्स इन स्पैनिंग सेट। तो टी क्या था आपके पास, स्पैन एस, और स्पैन ऑफ टी क्या था, स्पैन, तो वन साइड इज ट्रू। यस सर, यस सर। चलो, अब हमें क्या प्रूफ करना है, डबल स्पैन एस इज अ सबसेट ऑफ स्पैन एस, है ना, डबल स्पैन का मतलब क्या ध्यान रखना है, स्पैन ऑफ टी, तो हमें प्रूफ करना है स्पैन ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ डबल स्पैन एस। चलो, सो कन्वर्सली लेट, तो हमने क्या लेना पड़ेगा, u बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ t, ये तो लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि हमें शो क्या करना है कि स्पैन टी, भी ध्यान रखना, हमें शो करना है स्पैन टी इज अ सबसेट ऑफ टी, ये शो करना है। तो हमने इधर लेफ्ट में ले लिया u बिलोंग्स टू स्पैन टी, इस व्हाट डज इट मीन, इट मीन u इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ किसके, टी, क्यों, u is a linear combination of the elements of t, t means what, t ध्यान रखना स्पैन ऐसे हमारा, स्पैन एस है ना, so this means I can write u is a linear combination of the elements of s, ये लिख सकता हूँ भाई, u है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ स्पैन s, तो स्पैन s के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो s के भी तो कॉम्बिनेशन होंगे, तो आई कैन से u इज a linear combination of the elements of s also, बोलिए, सर एक बार फिर से बता दो। u belongs to span t है, इसका मतलब क्या, what does it mean, it means u is a linear combination of the elements of t, t means what, span, भाई span s का नहीं तो होता है कि जो सेट है उसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। इस लाइन को मैं ये Yes, भी लिख sir. सकता हूँ कि u is a linear combination of the elements of s, क्योंकि s जो है वो तो span s के अंदर है ही, तो जो इस आपके स्पैन एस के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन होंगे तो अल्टीमेटली एस के भी कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि इसके अंदर एस के एलिमेंट्स भी हैं, है ना, यस सर। सर यस सर, एस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो स्पैन एस में जाएगा और उसका बराबर है वो टी के। हाँ, तो अगर u इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्पैन s हुआ तो u इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s भी हुआ, क्योंकि स्पैन s में s के एलिमेंट्स भी हैं सारे, ओके सर इसमें सर स्पैन एस जो है जी, सर उसमें जरूरी थोड़ी ना है कि एस के सारे ही एलिमेंट हो। नहीं s तो पूरा होगा ना स्पैन s के अंदर, लेकिन पूरा s सर स्पैन एस s के पूरा, अंदर होगा, यस सर एस पूरा होगा, लेकिन सर अगर जैसे कोई एलिमेंट एस स्पैन एस को बिलोंग करता है तो सर ये हाँ। गारंटी थोड़ी ना है कि वो एस को बिलोंग करे, लेकिन सर नहीं एस के सारे एलिमेंट होंगे उसमें। नहीं, लेकिन हम उसे एज ए लिनियर कॉम्बिनेशन तो लिख सकते हैं ना, जीरो बना के लिख सकते हैं, क्योंकि स्पैन एस में जीरो भी होगा, तो अगर यस कोई भी सर। एलिमेंट आपका u अगर हुआ तो उसको हम s के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में तो लिख सकते हैं, हाँ, यू डॉट
भाई यू डॉट यू करके 1 करके, हाँ सर है ना भाई, स्पैन ये एस चीज में कह यू रहा डॉट वन भी होगा आपका और 0.u भी होगा, ये सब होंगे, तो ये सब एस के एलिमेंट्स भी हैं, क्योंकि आपका यू आर्बिट्रेरी होता है इसलिए हम एस के लिए कह सकते हैं। बताओ। सर ये यू जो है आर्बिट्रेरी है, तो सर उस हिसाब से अगर मतलब मान लो अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ, ये यू और यू आपने जो अभी लिखे हैं तो सर फिर उस हिसाब से तो सर एस को बिलोंग नहीं करेगा ना वो। नहीं भाई, यू आपके पास जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ स्पैन एस। इसका मतलब ये हुआ कि यू जो होगा वो कुछ आपका इस टाइप का होगा, सपोज करो β1 एंड सम लीनियर कॉम्बिनेशन, कुछ α1 u1 एंड सो ऑन अल्फा एन un, ये कहना चाह रहा हूँ, है ना, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन तो कुछ इस टाइप के भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है α1 u1 भी हो सकता है, और इसमें हो ये भी आ सकते हैं, क्या नाम है, सिर्फ u1 आ सकता है या u1 प्लस u2, ये सारे जो है आपके एस स्पैन एस के अंदर होंगे, है ना, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इन लीनियर कॉम्बिनेशन में बीटा अल्फा की चॉइस मेरे हाथ में है, तो मैं सपोज करो यहाँ पर β1 को 0 ले लूँ, β2 को 1 ले लूँ और α1 को 1 ले लूँ और बाकी सारे बीटा 0 कर दूँ, तो आपके पास u1 नहीं आ गया, ये खाली u1 आ गया, है ना। लेकिन क्योंकि सर अगर ऐसा नहीं किया तो फिर नहीं तो नहीं करेगा वो। नहीं, क्यों नहीं किया, आपके पास तो चॉइस आपके हाथ में है ना, यू हैव ऑल अल्फा बीटा इन योर हैंड, दे बिलोंग्स टू आर, तो वो ये कहता है कि कुछ भी पॉसिबिलिटी ले लो सब आएगा, तो ये तो चॉइस मेरे हाथ में है ना, मैं 0 1 ले सकता हूँ, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आई कैन नॉट टेक इट 1 0, तो मैं पूरे लीनियर स्पैन सेट में अपने अकॉर्डिंग चॉइस करके u1 u2 सारे वेक्टर्स ला सकता हूँ मैं, तो जो स्पैन एस के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वो एस के ही बन जाएंगे, क्योंकि इनकी चॉइस मेरे हाथ में है। यस सर। सर एस जो है वो सर वेक्टर का सेट है ना, तो वेक्टर में 0 वेक्टर भी तो होंगे, तो नहीं, उसका 0 भी भी लीनियर होंगे नॉन 0 भी होंगे, क्योंकि स्पैन एस यस जो सर। है ना आपके पास, स्पैन एस क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, आप ये लिखते हैं, यस सर। है ना, तो ये यस जो सर, अल्फा होते हैं ये अल्फा की चॉइस आपके हाथ में होती है, वो जो हम चेक करते इट हैं कि बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो जो हम अभी चेक करते हैं, जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अभी हमने अभी प्रॉब्लम निकाली तो वहां पे हमने वैल्यू निकाली थी कि α1 आ गया था, β2 आ गया था, है ना, तो वो जो चॉइस आती है वो तो उस वेक्टर के लिए आती है कि हम वेक्टर चेक करना चाह रहे हैं स्पैन एस में है नहीं है, लेकिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन की चॉइस तो हमारे हाथ में, ये तो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं ना। बताइए। तो यहाँ पर जैसे आपने कोई यू लिया, मैं ठीक है यहाँ पे सर। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ, तो इस स्पैन एस के अंदर मैं सारे एस ला सकता हूँ, तो कोई अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आपका स्पैन एस का बन रहा है तो उसे हम यू को उसमें भी ले सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है, सोचना इसको और डिस्कस कर लेंगे, सोचना और इसको कि कैसे हो रहा है, यस मैंने बात बताई है ना। देखो लीनियर अलजेब्रा इसलिए का थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ सोचना ज्यादा है लिखना कम है, देख लो आप कितनी बड़ी बड़ी थ्योरम 2 लाइन में प्रूव हो गई, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ा कि स्टेप कहाँ से लेके आए, यही एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो यूज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस आल्सो, so it means what I can say कि u belongs to span s, क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन क्या की है, स्पैन एस की, कि अगर u आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है s का, तो इसका मतलब क्या होगा कि u स्पैन s में बिलोंग करेगा। ओके, और सर स्पैन एस उसके बराबर है, वो वाला जो है डबल, वहां से उसको पुट कर। हाँ, ये यहाँ पर t हमारा जो, हाँ इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इम्प्लाइज दैट बाय दिस स्पैन t इज अ सबसेट ऑफ स्पैन s, है ना, u belongs to a implies u belongs to b, और स्पैन ऑफ t क्या था, स्पैन t मींस डबल स्पैन ऑफ s, और सिंगल स्पैन आपके पास था ही है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट हमने प्रूव करी थी ये, तो फ्रॉम फर्स्ट 1 and 2, फ्रॉम we get span of span s is equal to span s, है ना, तो इसी का यूज करके आप आगे यू कैन प्रूव आल्सो कि span s is equal to nothing but
क्योंकि अब आप डबल करेंगे देखो, तो इधर दोनों साइड स्पैन लगा देंगे। ये हमने अभी प्रूफ कर दिया पाई पार्ट बी, ये किसके इक्वल था, हाँ नहीं था, इस पार्ट से, तो ये आ जाएगा। तो इस पार्ट का यूज करके आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। क्लियर है बात ये, यस सर। है ना? सर वो वाली स्लाइड पे एक बार करना सर, स्क्रीनशॉट लेना था, पिछली वाली जो थ्योरम थी। लीजिए, ये या इससे पीछे, इससे पहले सर। लीजिए। यस सर। हो गया सर। गुड। वन मोर प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम, इनफैक्ट आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम है इससे, नहीं एक और, हाँ एक लास्ट प्रॉब्लम है आपकी इसकी, प्रॉब्लम नंबर 4, पेज 76. It says that let v1, v2 and so on vn be n elements of a vector space V. Okay, then prove that three parts are there. First part is span of v1, v2, vn. This equal to span of alpha 1 v1, alpha 2 v2 and so on, alpha n vn, where alpha I is not equal to 0, है ना? 0 के इक्वल नहीं है अल्फा आई, ये सोच के बताना क्यों नहीं है 0, मतलब ऑल अल्फा आई नॉन जीरो होनी चाहिए। B is v1 v2, this span of v1 v2 is equal to span of v1 minus v2 v1 plus v2। ये होम असाइनमेंट है, ये आप खुद ट्राई करेंगे फिर डिस्कस करेंगे मुझसे। सी पार्ट, if vk belongs to some span set v1 v2 vk minus 1, सपोज vk कोई एलिमेंट है जो अपने वेक्टर्स प्रीवियस अप टू vk minus 1 वेक्टर्स के स्पैन में बिलोंग कर रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ, vk कैन बी रिटन एज vk इज इक्वल टू सम बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस एंड सो ऑन बीटा k माइनस vk माइनस 1, कुछ इस टाइप का वेक्टर है vk। देन स्पैनिंग सेट ऑफ v1 v2 and so on comma vk minus 1 vk plus 1 and so on vn, this equal to v1 v2 and so on vk minus 1 vk plus 1 and so on vn। क्या हुआ भाई, लास्ट सेट में क्या है आपके पास? सर ये तो दोनों बराबर ही दिख रहा। कोई एक नया कोई चीज ऐसी नहीं दिख रही जो पहले में है और दूसरे में नहीं है? ये देखो VK ये क्या है, वीके सर, वीके और यहाँ पर कहाँ है वीके, यहाँ पे मिसिंग है ना? यस वीके मिसिंग, वीके मिसिंग, मिसिंग करा गया है जानबूझ के, ठीक है? अच्छा, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्पैनिंग सेट है ऐसा जिसमें वीके जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है बाकी पीछे एलिमेंट्स का, तो अगर उस एलिमेंट को हम हटा दें तब भी स्पैनिंग सेट बराबर रहेगा, है ना? क्योंकि स्पैनिंग सेट इनफाइनाइट सेट है, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इनफाइनाइट में से आपने कोई चीज़ निकाल ली तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा। समुद्र में से आपने 2 बाल्टी निकाल दी तो समुद्र समुद्र ही रहेगा, कोई नदी कोई बन गई, वही उसी सेंस में है। लेकिन वो एलिमेंट कौन सा हटाया है इन्होंने कि दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, उसको हम हटा दें अब स्पैन बनाए तो अब भी वो इक्वल आएगा। ये हमें प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में। तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है
कि इफ यू हैव स्पैनिंग सेट ऑफ सम वेक्टर्स, तो अगर आप उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें अल्फा से, अल्फा शुड बी नॉट जीरो, देन स्टिल द स्पैनिंग सेट विल बी इक्वल। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे या कुछ घट जाएंगे, या दे विल गिव यू द सेम स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट की बात हो रही है। ओके, करें प्रूफ? चलो, let us take the proof very quickly, टाइम कम है, प्रॉब्लम खत्म करनी है। तो लेट ए, so you know, as I told you, whenever you want to show two sets are equal, you have only one rule: a subset of b, b subset of a. I want to show left hand side is equal to right hand side. I am taking, suppose, let u belongs to your left hand side v1, v2 and so on vn. So you know, by the definition of spanning set, u can be written as what? Some beta 1 linear v1 combination. beta 2 v2 and so on plus beta n vn. Okay, is it clear now? अब देखो, मुझे यहाँ पर क्या लाना है, स्पैनिंग सेट लाना है अल्फा 1 अल्फा 2 वाला, यानी कि यहाँ पर मुझे कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2। यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 कैसे ला सकता हूँ मैं, बताइए मुझे प्रूफ में अल्फा 1 बीटा, हाँ बताओ। यस सर अल्फा 1 डिवाइड बाय बीटा 1 मल्टीप्लाई। यस, बहुत सही। सर कौन बोला ये? फराज। फराज अली बोले। हाँ, फराज अली ने सही बताया भाई, अल्फा 1 से डिवाइड कर दो, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके वाला हमने कुछ नहीं किया और अल्फा 1 पिक्चर के अंदर आ गया। ये तो खासियत है मैथमेटिक्स की, जो चीज चाहिए उसे हम ला सकते हैं डिवाइड करके या माइनस प्लस करके। क्यों भाई, क्यों शर्मा? यस सर। हाँ, तो हमने इससे डिवाइड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आई नहीं आई बात? अब बीटा 1 Yes, अल्फा sir. 1 इट इज अगेन सम स्केलर, कुछ स्केलर ही तो होगा, रियल नंबर। इसको मैंने मान लिया गामा 1 अल्फा 1 v1, इसको मैंने मान लिया गामा 2 अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन गामा n अल्फा n vn। ठीक, अब अगर आप देखें तो ये क्या लग रहा है, इट लुक्स लाइक सर, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 v1 अल्फा सर 2। एक चीज, हाँ बोलिए। सर एक चीज पूछनी है सर, आपने पूछा था कि अल्फा 0 क्यों नहीं हो सकता, तो ये आइडिया, जी जी बताइए, बोलिए। सर ये बोल रहा हूँ कि सर आपने बोला था अल्फा 0 नहीं हो सकता है, बात नहीं आ रही सर? हाँ आ रही है, बोलिए। सर ये अल्फा 0 नहीं हो सकता आपने पूछा तो सर इसीलिए तो नहीं हो सकता कि अल्फा का डिवाइड दिया है यहाँ पे, अल्फा 1 अल्फा 2। ये बात फराज अली ने पकड़ ली, आप नहीं पकड़ पाए। ठीक है, तो ये इसीलिए दिया था कि हमने डिवाइड करा। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर गामा आई इज इक्वल टू बीटा आई अपॉन अल्फा आई, हमने एज्यूम किया है अल्फा आई। अब आपको दिख रहा है कि इट इज व्हाट इट इज, क्योंकि अल्फा 1 v1 इज अगेन अ वेक्टर, तो इट इज नथिंग बट इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा n vn, है ना? ये तो है अल्फा n vn वेक्टर्स का है। तो इट मींस व्हाट, इट मींस u बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा n vn। सो अल्टीमेटली क्या शो हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड v1 v2 एंड सो ऑन vn is a subset of alpha 1 v1 alpha 2 v2 and so on alpha n vn। सिमिलरली कन्वर्स शो कर सकते हैं, सिमिलरली यू कैन शो alpha 1 v1 alpha 2 v2 and so on alpha n vn is a subset of
v1 v2 एंड सो ऑन vn सिमिलरली शो कर देंगे भाई नहीं। अब क्या लेके चलोगे, अब आप लेंगे सपोज u बिलोंग्स टू दिस, तो u कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर, तो क्या लिख सकते हैं u को आप β1 α1 v1 प्लस β2 α2 v2 एंड सो ऑन βn अल्फा एंड vn, और β1 α1 को फिर हम गामा 1 मान लें। अब क्या गामा 1 क्या हो जाएगा आपके पास, β1 α1, इट विल बिकम गामा 1 v1 प्लस गामा 2 v2 व्हिच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। क्यों भाई, Yes, sir. हैंस ए फॉलोज, इसलिए मैंने सिमिलरली लिख दिया है। सेम आप वेक्टर लेंगे और उसको आप अब की बार प्रोडक्ट को आप गामा 1 मानेंगे, β1 α1 को। बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, यू विल स्ट्रगल बाय योरसेल्फ देन यू विल आस्क। ऐसा आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ये शो करना है आपको। ठीक है, कुछ आपको देखना होगा कि हम अल्फा बीटा क्या लें, इस्तेमाल करके हो जाएगा। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट जो था आपके पास, सी पार्ट के लिए टाइम कम है, 2 मिनट है, कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास क्या है, हमें ये चीज गिवन है, देखो सी में हमें ये गिवन था। सी पार्ट एक बार देख लो फिर से, हमें ये गिवन है कि वी के जो है आपका एक एलिमेंट है विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स, है ना, अप टू वी के -1। so it is given to you, given vk belongs to v span set of v1 v2 vk -1, है ना। तो अगर vk इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यू कैन राइट vk इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2 एंड सो ऑन अल्फा k -1 vk -1। ओके, ये बताइए क्लास एंड होगी तो मैं कंटिन्यू कर लूं इसके बाद आगे, विल यू अलाउ मी? जल्दी बताओ भाई सब लोग। ओके सर। सब लोग तैयार हैं? नो सर। क्यों? क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है ना। बताओ भाई फराज अली। हाँ सर, हाँ सर। तो मैं अभी क्लास इसको एंड कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट रह गया, और कंटिन्यू कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करिए। वहाँ पे इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि कट हो जाएगा तो फिर क्लास रह जाएगी ना, ये प्रॉब्लम बेकार लिखूँ मैं। ठीक है सर। इसको एंड करके ज्वाइन करते हैं दोबारा। 1 मिनट रुकिए। सब ज्वाइन करें दोबारा।